Abhay Tomar. Rape is an expected thing in this world and marital rape is just non-existential. Marital rape तो exist ही नहीं करता. Women must take necessary measures to ensure that they must not be raped. और अगर आपका रेप हुआ भी है तो इसमें आप ही की गलती है और शायद इसीलिए ही रेप रिपोर्ट ही नहीं होते. एक डाटा के हिसाब से 99% केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते. The NFHS is a nationally representative survey covering nearly 7 lakh women. Detailed questions on sexual and physical violence were asked to a subsample of 79,729 women between 2015 and 2016. Even if one excludes marital rape and assault from the analysis, the extent of reporting sexual violence is still very small. Only about 15% of sexual violence committed by others, आपके पति से अलग, रिपोर्ट किए जाते हैं पुलिस में. Stats says that 96% of rapes happen within the four walls of the house. मतलब कि बाहर से ज्यादा आपको घर में डरने की जरूरत है. प्रॉब्लम इज रूटेड इन इन्वेस्टिंग टू मच इन फिजिकलिटी ऑफ लाइफ. सबसे बड़ी गलती जो समाज ने की है वो यही है कि हमने कहीं ना कहीं यूथ के दिमाग में, खासकर एक मेल यूथ के दिमाग में ये भर दिया है कि महिला एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक सामान है, उन पर उनका मालिकाना हक है. ये तो आप नाम से ही देख लीजिए, ये आपकी भाषा से ही आता है. अगर आप किसी को पति बोलते हैं उसका मतलब होता है कि किसी चीज का मालिक या स्वामी. According to the data shown by NCARB, National Crime Records Bureau, the rape vulnerability of a girl or woman has increased up to nearly 44% in the last 10 years. And nearly 3,13,289 cases were reported during the last 10 years. खैर, इसको छोड़ दीजिए. अगर हम एक आम देखें तो 2012 के बाद सरकार की आंखें खुली और उन्होंने एक अलग फंड बनाया जिसका नामांकन किया गया निर्भया फंड. Center has released nearly 3,024.96 crore and just 1911 crore is just utilized. गवर्नमेंट ने लगभग 56% फंड्स पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग पर ही खर्च कर दिए और सिर्फ 24% ही स्टेट्स को दिए गए. और ये क्या नॉनसेंस बात है कि अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारी बदनामी होगी, कोई शादी नहीं करेगा. पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं, और अगर है भी तो मत करो यार शादी ऐसों के साथ. भाड़ में जाए ऐसे लोग जो ऐसा सोचते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि गोली मार दो, फांसी दे दो. क्या ये समस्या का समाधान है? Is law enforcement really a permanent fix for a problem which is so deep you just can't believe? There are thousands of rape video games. In one of them, their goal is that you have to rape mother and her 2 daughters so that they start enjoying it. How mean? This is bought in millions and people go plays in their offices and home. And anywhere. Aren't we nurturing a sick world? Very sad to say, but still, in most minds, a woman means just body parts, a breast, a navel, curve, or a long hair. I have seen people laughing over a video where a girl was being raped, and they were just enjoying the comments of people committing it. Isn't it so sad? Imagine being taken to a room in a dark, decrepit building. Imagine being pinned down on the floor. Imagine your underwear being taken off. Imagine seeing a knife being hit on the gas stove. Imagine the same hot knife slicing your clitoris. Imagine young girls shrieking in pain. This is what happens in FGM. Just on the basis of gender, a human is brutalized. And this is not only happening in India, but everywhere. मर्द को सुनना ही पसंद नहीं, और अगर उल्टा जवाब दिया तो खैर वे ऑर्गेज़मिक हो जाते हैं. सुनो बस. कहाँ की बात है ये कि अपनी बहन की रक्षा करें और दूसरों के बहनों की जिंदगी लें? क्या उस बाप को कभी किसी ने पूछा जिसके वो रोज पैर छूते थे? Biggest issue is how to handle the feelings when 80% of the content is pornographic and freely available to everyone. Social media and whole internet is just like अंगूर के हाथ में अंगूर.
मैं ये नहीं कहता कि सभी लड़के गलत हैं, कुछ लड़कियां भी गलत हैं, और इसका दूसरा पहलू भी है जिसको हम सूडो फेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। A Delhi Commission of the Women report shows that 53.2% of the rape cases filed between April 2013 and July 2014 in the capital were found false or fake. जयपुर पुलिस ने भी कहा है कि 43% जितने भी रिपोर्ट हुए हैं केसेस लगभग फेक या फॉल्स पाए गए। ये क्यों नहीं मानते, ये क्यों नहीं समझते कि क्या अंतर रह जाएगा इनमें और उनमें? कैसे लड़ पाएंगे कुछ लोग जब सवाल सबसे पहले यही उठेगा कि ये सब लोग का फायदा उठा रहे हैं। आजकल लोग बहुत पोस्ट कर रहे हैं ना कि अगर कुछ सहायता चाहिएगी, कहीं परेशान हो तो हमें बताना, ये वगैरह वगैरह। ये वही हैं जो सोचते हैं कि कपड़े मैटर करते हैं। आपके सामने थोड़ी बोलेंगे ऐसा, या आपको किसी बॉयज लोकर रूम के ग्रुप में मिलेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर कपड़े मैटर करते तो शायद 3 साल के बच्चों के साथ रेप ना होते, बुर्खा पहनने वालों के साथ ऐसा ना होता, और ना ही नन के साथ। अरे मत डरो, इनको सुनने की आदत ही नहीं रही। तभी तो अगर कभी जवाब आ जाए तो उसको अपना अपमान मान लेते हैं। ये ना तो किसी जाति, धर्म, ना ही उम्र को देखते हैं। लेट मी टेल यू अ वेरी रियल इंसिडेंट। एक बार एक बाप की 7 लड़कियां थी। उसने पहले वाली का रेप किया, फिर दूसरे वाली का, फिर तीसरे वाली का, कभी चौथी, कभी 5वीं, कभी 6ठी, लेकिन 7वीं बच गई क्योंकि वो दवाइयां लेती थी ताकि उसको 12 के 12 महीने पीरियड्स रहें। कैन यू फील दैट पेन? क्या उसके दर्द को सिर्फ 5 मिनट के लिए समझ पाते हैं? शायद नहीं। अगर समझते तो शायद ऐसा ना होता। Why we don't talk about sexualities? क्यों टीचर हमें पनिशमेंट के रूप में 2 लड़कियों के बीच में बैठने को बोलते हैं? क्या सिखा रहे हैं वो? क्यों बात करना पसंद नहीं करते, ना माँ ना बाप? क्यों दोस्तों के बीच ये सब हंसी में छोड़ा दिया जाता है? क्यों? बेटियों की, कुलवधुओं की, बहनों की चीखों पर अक्सर चुप रहने वाले हस्तिनापुर खंडर में बदल जाते हैं। सवाल पूछिए, अगर कुछ कहते हैं तो जवाब दीजिए। डरिए मत। तुम्हें सीखने की नहीं, उन्हें सीखने की जरूरत है। डरना ना तो कभी किसी ने सिखाया और ना सीखिए। 1857 की क्रांति के बाद भी अंग्रेजों ने अगर किसी को मर्द बताया था तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी। वो मर्द बनिए, उस मर्द को पहचानिए। धन्यवाद। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। का शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।